Jatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsir, hashtag A to Z Software. Now, let's start with the topic. In yesterday's class, we have discussed CPU organization. CPU organization by general register organization. In that organization, we have multiple registers. Selection of registers depends on the multiplexers, the first register, the second register, and the third one, the output register. Okay, these things are depend on select lines of the multiplexers and decoder. If you have 7 registers, 1 input, it means total 8 inputs. For 8 inputs, you need 8:1 multiplexer, and 8:1 multiplexer will have 3 select lines. Similarly, multiplexer A will have 3, multiplexer B will have 3. If the number of registers, if the number of registers will increase from 7 to 15, if number of registers will be increased from 7 to 15 means 7 से register 15 कर दिए, in that case multiplexer A and multiplexer B इनकी भी capacity बढ़ेगी. अब ये कितने हो जाएंगे? 15 registers and 1 input means 16 inputs. So for 16 inputs there may be a need of 4 select lines. 4 select lines of multiplexer A, 4 select lines of multiplexer B, and similarly now you have to store the output in any one of the 15. So in that case you need 4:16 decoder. So select lines can be varied with the number of inputs. Okay, is it clear to everyone? Now this is the OPR. OPR is basically the number of bits that shows how many operations, how much amount of operations will be performed by ALU. Means अगर आपके पास 5 bit का OPR जैसा डायग्राम में शो हो रहा है, if the OPR is of 5 bit, in that case 2 raised to power 5 means it is equals to 32. So this ALU can perform 32 operations, and if you want that your ALU will perform 40 operations, for that you need 6 OPRs. If your ALU is performing 33 onwards operations up to 64, 33 to 64, then your OPR will contain 6 bits. 6 bit का OPR बनेगा. अगर 64 से ज़्यादा ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, इन दैट केस 64 to 128 कितना होगा? OPR will be of 7 bit. Means the highest part of the higher range of the operation will gives you the number of bits. Now क्वेश्चन देखते हैं. This is the question 8.1. Okay, 16 registers पता लग गया आपको, नंबर ऑफ रजिस्टर वेरी कर गए. हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर्स देयर आर इन A bus and in size of each multiplexer. Now when we are talking number of multiplexers, अभी जो डायग्राम आपने किया, जो मैंने दिखाया था, that diagram shows you that each register is of 1 bit. Okay, the diagram shows that each register is of 1 bit.
R1 R2 R3 इज ऑफ 1 बिट, तो 1 बिट के लिए एक मल्टीप्लेक्सर था, एक बिट इसमें गया, एक बिट इसमें गया। ओके, इफ दिस इज ऑफ 2 बिट तो आपके पास दो मल्टीप्लेक्सर लगेंगे ए बस में, सिर्फ इसके लिए दो मल्टीप्लेक्सर, क्योंकि एक बिट ए में जाएगा, एक बिट दूसरे में जाएगा ए बस के लिए। अगर आपके पास 4 बिट का रजिस्टर होगा तो 4, अगर आपके पास 16 बिट का रजिस्टर होगा तो कितने लगेंगे? 16। यहाँ पर कितने बिट के रजिस्टर हैं? 32 बिट के, तो आपके पास कितने बिट का मल्टीप्लेक्सर लगेगा? 32 बिट का, फॉर ए बस एंड फॉर बी बस। Second is how many selection inputs for mux A mux B? That depends on the input lines. Input lines कितनी होंगी? 16. Okay, 16 के केस में मल्टीप्लेक्सर में कितनी सेलेक्ट लाइंस आएंगी? 4 in mux A, 4 in mux B. Okay, बेसिकली जो A पार्ट का आंसर है that is your common bus architecture. Okay, मीन्स रजिस्टर की जो नंबर ऑफ बिट्स है वो डिपेंड करता है मल्टीप्लेक्सर। पहले आप कॉमन बस वाले का क्वेश्चन पूछा उसने, देन उसने मक्स ए मक्स बी पूछा। ओके, कंफ्यूज मत होना कि सर कल तो 2 बताया था, आज आप 32 बता रहे हो। दिस इज द आंसर ऑफ कॉमन बस, मतलब हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर्स आर देयर इन ए बस। अभी वो बस के मल्टीप्लेक्सर पूछ रहा है, 32 बिट का है तो 32 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ ईच मल्टीप्लेक्सर? ईच मल्टीप्लेक्सर का साइज कितना होगा? नंबर ऑफ इनपुट कितनी है? 16, तो 16। ओके, नाउ सी पार्ट, हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर देयर इन डिकोडर। डिकोडर कितना लगेगा? 4:60, तो इनपुट कितनी होगी? 4 और आउटपुट कितनी होगी? 16। आई जस्ट टोल्ड यू दिस। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर देयर इन एएलयू फॉर डेटा। एएलयू के लिए एएलयू में कितना होगा? एएलयू में कितना इनपुट और आउटपुट होगा? डी पार्ट में हाउ मेनी इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर देयर इन एएलयू, कितनी इनपुट और कितनी जो है आउटपुट होगी एएलयू में? 32 बिट का आएगा ए से, 32 बिट का आएगा बी से, कितना हो गया? 64। बट एक इनपुट लाइन भी होती है, उसको आप मिस कर गए। इसने एक इनपुट लाइन भी होती है जिसको आप मिस कर गए, तो 32 + 32 + 1, तो कितना हो जाएगा? 65 इनपुट्स। ओके, एंड आउटपुट कितनी होगी? आउटपुट कितनी होगी? 32 बिट का रजिस्टर है तो 32 बिट्स तो वो होंगी, और एक होती है डायरेक्टली आउटपुट में, तो कितनी होंगी? 33 आउटपुट पिन्स लाइंस। ओके, नाउ fifth is formulate a control word for the system assuming that ALU has 35 operations. कंट्रोल वर्ड में सेलेक्ट ए, सेलेक्ट बी, सेलेक्ट डी और OPR। सेलेक्ट ए, बी और डी हमने अभी पढ़ लिया है, 444 होगा। OPR will be of 6 bits, not 5 bits, because 5 bit में हम मैक्सिमम 32 ऑपरेशंस को प्लेस कर सकते हैं। नाउ इन केस ऑफ 35, 32 से ऊपर निकल गया, चाहे वो 35 हो, चाहे 40 हो, 45 हो, 50, 55, 60, 62, 63, 64, मैक्सिमम 64 तक, 33 से लेकर 64 तक कितने भी ऑपरेशंस हो, आपको नंबर ऑफ लाइंस की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 6। सो कंट्रोल वर्ड कंप्लीटली कितने बिट का बन जाएगा? नाउ 4 + 4 + 4 + 6 मीन्स 18 बिट। कल हमने एक कंट्रोल वर्ड पढ़ा था, दैट इज ऑफ 14 बिट। नाउ अनदर कंट्रोल वर्ड इज ऑफ 18 बिट। हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से मिले, एक स्टेटमेंट आपको दे दिया है इस तरह से, ये स्टेटमेंट है, बताइए आप कंट्रोल वर्ड डिजाइन करिए। ओके, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, प्रीवियस लेक्चर में भी हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ select A यानी R2, R2 will be the first 0 1 0, R3 यानी second 0 1 1, R1 is the destination 0 0 1, and subtraction is the operation. For subtraction the code is OPR code is 0 0 1 0 1. Now R1 R2 R3 R4 ये सारी चीजें तो आपके डायरेक्टली बाइनरी काउंट के ऊपर ही
रहती हैं। आपको ये कुछ ऑपरेशंस हैं बाय डिफॉल्ट, लाइक एग्जांपल के लिए इसमें दिए हुए हैं। ओके, लेट मी शो यू अगेन। नाउ दीज आर द ऑपरेशंस, यू जस्ट चेक दिस आउट, दीज आर द ऑपरेशंस। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए कोड देखिए 00101 00101। ओके, तो 00101 हमने कहाँ लगा दिया फिर? अब आपका इस पर्टिकुलर कंट्रोल वर्ड के सब्ट्रैक्शन में 00101। इन नेक्स्ट केस R4 or R5, this symbol is of OR operation. Okay, this symbol is of OR operation. OR operation के लिए symbol होता है ये। So first one क्या होगा? OR, first one क्या होगा? R4 100, second is R5 101, थर्ड यानी सेलेक्ट डी कहाँ जा रहा है? R4 में, अगेन R4 का कोड लिख दो यहाँ पे। एंड नाउ चेक द कोड फॉर OR ऑपरेशन, चेक द कोड फॉर OR ऑपरेशन। OR ऑपरेशन क्या बताएगा आपको? लाइक दिस 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0। okay, now next is R6 plus 1 will goes into R6. Now check this, plus 1 will be taken from input, plus 1 will be taken from input, or it is a increment operation. Plus 1 is an increment operation. In the increment operation we can disable the registers. Disabling the register means we are taking input from input line. अगर input line पर कुछ डेटा होगा तो हम उसको रीड करेंगे, अदरवाइज उसको रीड भी नहीं करेंगे। हम किसी रजिस्टर को रीड नहीं करेंगे इस केस में। आपके पास फर्स्ट रजिस्टर है R6, तो R6 की वैल्यू लिखेंगे हम 110। सेकेंड कोई रजिस्टर नहीं है तो वैल्यू क्या लिखी जाएगी? 000 मीन्स इनपुट। सोर्स R6 था, डेस्टिनेशन क्या है? अगेन R6 110। ऑपरेशन कोड इंक्रीमेंट का लेटर 01, 4 बार 0 उसके बाद 1, that is for increment. See the next one, R1 implies to R7, this arrow means implies to, okay, means R1 की वैल्यू को R7 में डाल दीजिए। पहला सोर्स क्या है? R1, ओके, दूसरा कुछ नहीं है, तीसरा क्या है? R7। ट्रांसफर है तो 001 सोर्स है, सेकंड कुछ नहीं है 000, ओके। थर्ड केस में R7 है तो हमने 111 लिया। ट्रांसफर का जो ऑपकोड है दैट इज पेंटा जीरोस, 5 बार जीरोस, ओके। नेक्स्ट R2 implies to output, means R2 में रजिस्टर में जो भी वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी शोन ऑन द आउटपुट। सोर्स क्या हुआ? R2, डेटा R2 से लेना है। सेकेंड सोर्स कुछ नहीं है, और आपके पास आउटपुट में डेटा कहाँ लेना है? डायरेक्टली आउटपुट, यहाँ आउटपुट लिखा है, इट मींस डायरेक्टली आउटपुट पे दे रहा है, तो कोई भी रजिस्टर सेलेक्ट नहीं करेंगे। इन दिस केस you will choose what? R2, okay, then select B will be 0, select D will be 0, no register will be selected, and it is the operation of transfer, like this one. This is a transfer, this is again a transfer, so in this case the opcode of transfer will be same, 0 0 0 0 0, 5 times 0, penta zeros बोलते हैं इसको, okay। In next case no register will be selected, input को directly output पर देना, no register will be selected, in this case all zeros. Why? Because first no register, second no register, third no register, fifth one, the code for transfer is 5 times 0, so all zeros. This string is of 1010 string है। इस string को हम कहेंगे मशीन लैंग्वेज कोड और बाइनरी लैंग्वेज कोड। प्रोसेसर इस बाइनरी लैंग्वेज कोड को जानता है, ओके, वो इस बाइनरी लैंग्वेज कोड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। आप सी में, सी प्लस प्लस में, जावा पाइथन में जो प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम भी इसी तरीके से 10 में कन्वर्ट होता है, ओके। एंड प्रोसेसर सिर्फ ये 10 की कैलकुलेशन जानता है, वो ये सिर्फ इसी के अकॉर्डिंगली ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। जब हम इस तरह की लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं
फॉर एग्जाम्पल हम इस तरह की लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ये ऐसी लैंग्वेज है जो थोड़ा प्रोसेसर के फेवर की है और थोड़ा यूजर के, प्रोग्रामर के फेवर की है। हाउ, हम R1 R2 यूज कर रहे हैं, प्रोसेसर को R1 R2 का डायरेक्ट मतलब पता है। ओके, तो इस केस में जो है प्रोसेसर और प्रोग्रामर दोनों के बीच में ये लैंग्वेज लाई कर रही है, तो इसको हम मिडल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं, मिडल लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। निमोनिक्स यूज करते हैं इसमें, R1 R2 ट्रांसफर ऐड सब्ट्रैक्ट, निमोनिक्स यूज करते हैं। तो ये क्या होती है, मिडल लेवल लैंग्वेज और असेंबली प्रोग्रामिंग। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट इज R4 shift left implies to R4. R4 data will be shift left, SHL, shift left, and now the result will be saved into R4 only. So the first is R4, second is no, third is R4. सोर्स भी R4 है, डेस्टिनेशन भी R4 है और कोई दूसरा रजिस्टर यूज नहीं हो रहा। ऑपरेशन इज शिफ्ट लेफ्ट। ओके, शिफ्ट लेफ्ट के लिए कोड है आपके पास 110000 110000। सो योर कंट्रोल वर्ड विल बी 1000000 100 110000। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट केस 0 is putting on the register R5। ओके, मीन्स आपने पहली वैल्यू कहाँ से लेनी है, R5 से, दूसरी वैल्यू कहाँ से लेनी है, R5 से, तीसरी वैल्यू कहाँ जाएगी, R5 में। ऑपरेशन कौन सा कर रहे हो, एक्सॉर। ऑपरेशन कौन सा कर रहे हो, एक्सॉर। आप इसमें आउटपुट नहीं लिख सकते, यह 0 है, आप आउटपुट नहीं लिख सकते। हो सकता है आउटपुट पे आपके पास 0 ना हो, आपको ऐसा करना है कि R5 के जो कंटेंट है वो 0 हो जाए, R5 के जो कंटेंट हैं वो 0 हो जाएं, और किसी भी बिट को अगर उसी बिट के साथ एक्सॉर किया जाता है, इफ 1 एक्सॉर 1 मीन्स 0, 0 एक्सॉर 0 मीन्स 0, इफ 1 एक्सॉर 0 इज 1, 0 एक्सॉर 1 इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स अगर आप कंटेंट ऑफ रजिस्टर R5, कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर R5 को एक्सॉर ऑपरेशन के थ्रू R5 के कंटेंट के साथ ही परफॉर्म करते हैं, तो R5 के कंटेंट्स क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि लेट R5 में 101 दिए। ओके, तो 101 को आप एक्सॉर करोगे 101 से, तो 1 को 1 से करोगे 0, 0 को 0 से करोगे 0, अगेन 1 को 1 से करोगे 0, तो 101 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 000, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ये देखना है कि अगर आपके पास OPR में कोई ऑपरेशन नहीं दिया, फॉर एग्जांपल 0 की शिफ्टिंग को कैसे आप डिनोट करेंगे, ये तो नहीं दिया हुआ। ओके, बट आपको ये पता है कि एक्सॉर ऑपरेशन जो है वो क्या करता है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R5 के ऑपरेशन को, R5 के कंटेंट्स को R5 के कंटेंट के साथ एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। नाउ इट विल बिकम 0। सो R5 R5 R5, सोर्स फर्स्ट, सोर्स सेकेंड और डेस्टिनेशन तीनों R5 है, तो 101 हो गया तीनों के केस में। नाउ एक्सॉर ऑपरेशन का कोड जो है वो है 01100 01100। ओके, नाउ हियर द ऑप कोड्स और ऑपरेशनल कोड्स और OPR बिट्स जो आपको दी गई हैं, ये OPR बिट्स रेंडमली दी गई हैं। आप याद करना चाहो इनको याद कर सकते हो। अगर बाई चांस क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें आप रेंडमली ऊपर लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट द OPR बिट्स हैविंग ऑपरेशन एज स्टेटेड बिलो। आप अपनी मर्जी से रेंडमली इनकी कोई वैल्यू देकर कोई भी ऑपरेशन दे सकते हो, बिकॉज ये किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोसेसर के लिए नहीं डिफाइंड है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं देयर इज अ प्रोसेसर X, तो उसका इंस्ट्रक्शन सेट डिफाइंड होगा। ओके, और आप कह रहे हो कि कोई प्रोसेसर नहीं है, बट जो प्रोसेसर्स होंगे उनके पास इस तरह की इंस्ट्रक्शंस डिफाइंड होंगी, तो उस केस में तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, सो इन ऑपरेशंस को रटने की या याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर जैसे क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है, इस केस में वो रेफरेंस दे रहा है कि आपको उस फिगर को यूज करना है, इट मींस उस फिगर के साथ जो टेबल दी हुई है आपको वो टेबल भी यूज करनी है। ओके,
और क्वेश्चन अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है या कोई क्वेश्चन पेपर में या वाइवा में कहीं भी आपसे पूछा जाता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इन एग्जैक्ट वैल्यूज को याद करके सॉल्व करो, बिकॉज ये एक जनरलाइज्ड आर्किटेक्चर को डिफाइन कर रही है, ना कि स्पेसिफिक आर्किटेक्चर को। ओके, जनरलाइज्ड आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? एवरी प्रोसेसर हैज सम इंस्ट्रक्शंस और एवरी प्रोसेसर हैज अ इंस्ट्रक्शन सेट। ओके, अग्रीड। बट उसकी कौन सी इंस्ट्रक्शन क्या काम कर रही है? 0 पर वो ऑन हो रहा है, 1 पर वो डेटा ट्रांसफर कर रहा है, 2 पर ऐड कर रहा है, ये सारी चीजें प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करेंगी। ओके, क्लियर यहां तक सभी को? In example 8.3, the first is R2 plus R3. The result will be in R1. So the 14-bit control word, इसमें देखिए इसने रेफरेंस दिया फिगर 8.2 means the figure which we have studied in the previous lecture. Okay, on that particular phenomena it will work. So इसका control word कितना होगा? 14-bit का control word रहेगा। And that 14-bit control word किस तरीके से बनेगा बताइए? स्टार्टिंग बिट होगी उसकी, लिखते रहिए, मैं बोल रहा हूं लिखते रहिएगा, एंड चेक विद योर आंसर्स। 010 011 001 00010। okay, for R2 the bit is 010, R3 011, R1 001 and the operation is addition। addition के लिए OPR कोड होता है 00010। now in next case R4 will be R4 means क्या ऑपरेशन कर रहे हैं हम? कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं इस केस में हम? तो लेट्स फोकस ऑन द ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस इसमें हो रहे हैं? ट्रांसफर, एक वैल्यू दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर हो रही है। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंटिंग द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर बाय 1, एडिंग द कंटेंट्स ऑफ 2 डिफरेंट रजिस्टर्स, सब्ट्रैक्टिंग द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर, कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ना कि रजिस्टर्स। ओके, डिक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बाय 1, एंडिंग logical AND operation between register A and register B. Here A and B are the R1 and R2 और R3 और R4 कोई भी दो रजिस्टर्स हो सकते हैं, जनरली उनको A और B में रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट इज लॉजिकल OR ऑपरेशन बिटवीन A and B. थर्ड इज XOR, लॉजिकल XOR ऑपरेशन बिटवीन A and B means register 1 register 2. now this is the complement A. complement means reverse the contents of registers specified, means अगर रजिस्टर में 1 वैल्यू है तो आप उसको 0 कर दो, 0 वैल्यू है तो उसको 1 कर दो। ओके, एंड नेक्स्ट इज शिफ्ट राइट, द कंटेंट विल बी शिफ्ट राइटेड, लास्ट बिट विल बी मूव टू द राइटेस्ट साइड। एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन इज शिफ्ट लेफ्ट, मतलब राइटेस्ट जो लेफ्टेस्ट बिट है उसको रोटेट कराएंगे, शिफ्ट कराएंगे। शिफ्ट कराने में और रोटेट कराने में डिफरेंस होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। शिफ्ट कराने का मतलब क्या होता है कि आप एक एक बिट को आगे ले गए और जो लास्ट वाली बिट बाहर आएगी उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ओके, नई बिट इंट्रोड्यूस करेंगे हम और लास्ट बिट को डिस्कार्ड कर देंगे जो बाहर निकलेगी। रोटेट में क्या करते हैं, जो लास्ट बिट होती है उसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आते हैं, या तो राइट साइड से रोटेशन होगा या लेफ्ट साइड से रोटेशन होगा। इन दिस केस शिफ्ट में क्या होगा, शिफ्ट राइट, मतलब राइट पोजीशन की तरफ एक एक बिट शिफ्ट करोगे तो लेफ्टेस्ट मोस्ट पार्ट पे क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे 0 इंसर्ट होगा। शिफ्ट लेफ्ट में क्या होगा, जो कंटेंट होगा उसको एक एक प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो राइट मोस्ट पार्ट पर 0 इंसर्ट करेंगे। ओके, सो नाउ R4 implies to R4 means R4 को R4 में रख रहे हैं। ओके, यहाँ पर आई थिंक एक मिसप्रिंटिंग है, R4 को ट्रांसफर R4 कर सकते हो या फिर हो सकता है R4 का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए, तो R4 के ऊपर बार बन जाएगा। यहाँ इसके ऊपर एक लाइन होनी चाहिए थी बार। दिस बार शोज कि R4 को हम नेगेशन यानी कि कॉम्प्लीमेंट लेकर R4 में डाल रहे हैं। तो दोनों के लिए ही कंट्रोल वर्ड बनेगा। अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो बाकी सब तो सेम रहेगा, 100 000 100, ये 9 बिट तो दोनों
केसेस में सेम रहेगी, चाहे R4 का कॉम्प्लीमेंट लो या R4 को ट्रांसफर करो। ओके, आई थिंक ट्रांसफर हो नहीं सकता बिकॉज एक रजिस्टर की वैल्यू उसी रजिस्टर में ट्रांसफर करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए था। ठीक है, सो इन दैट केस कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट का कोड होता है हमने अभी पढ़ा, दैट इज 01110, तो ओपीआर विल बी 01110, बाकी सारा सेम रहेगा। थर्ड वन, R5 -1 implies to R5 मीन्स अब क्या कर रहे हैं हम, एक से डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज डिक्रीमेंट। ओके, सो फर्स्ट रजिस्टर क्या है, जो सोर्स 1 है दैट इज R5, R5 के लिए कोड क्या होगा 101। सेकेंड रजिस्टर तो कोई है ही नहीं, दैट इज 000। थर्ड रजिस्टर कौन सा है, थर्ड रजिस्टर मतलब सेलेक्ट डी, आउटपुट, आउटपुट विल बी R5, सो R5 के केस में अगेन 101। डिक्रीमेंट का कोड लिखिए 00110, 00110, so this will be the control word. Okay, next case में R6 is the shift left operation of R1. In this part, the register R1, the content of register R1 will be shift left and the output will be in R6, in register R6। मतलब R1 के कंटेंट को लेफ्ट शिफ्ट करके हम क्या करेंगे, R6 में स्टोर कराएंगे। ओके, सो फर्स्ट रजिस्टर इज R1, R1 के लिए कोड क्या होता है, दैट इज 001, सेकंड कुछ है नहीं 000। आउटपुट कहां जा रही है, R6 में, R6 के लिए क्या लिखेंगे हम 110, एंड शिफ्ट लेफ्ट कोड होता है आपके पास 11100, 11100। ओके, फिफ्थ के केस में देखिए, इनपुट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू R7, इनपुट इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू R7। सो इनपुट का केस है, इट मींस आप कोई भी रजिस्टर सेलेक्ट नहीं करेंगे, सेलेक्ट ए विल बी 000, बी कुछ है ही नहीं 000, सी यानी सॉरी सी नहीं, सॉरी डी, डी इज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के केस में आपका क्या दिया हुआ है R7, R7 इज 111। सो अभी तक क्या ऑपकोड बना आपका, अभी तक कंट्रोल वर्ड क्या बना 000000111। ऑपरेशन क्या है, ट्रांसफर, ट्रांसफर का कोड क्या होता है 00000। ओके, सो दिस विल बी द कंट्रोल वर्ड। जब ये कंट्रोल वर्ड प्रोसेसर को सप्लाई करोगे तो प्रोसेसर समझ जाएगा उसको क्या करना है, इनपुट से डेटा लेकर R7 रजिस्टर में देना है। यहां तक सबको समझ में आया। नाउ ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आए और आपको इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके दिखाना हो। नाउ दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, आपके पास कंट्रोल वर्ड बना हुआ आ गया, दिस इज द 14 बिट कंट्रोल वर्ड बना हुआ आ गया आपके पास, एंड आपको स्टेट करना है कि क्या हो रहा है, ये ऑपरेशन कौन सा है, ऑपरेशन इस तरीके से आपको स्टेट करना होगा। ओके, नाउ 5 पार्ट्स हैं इसमें, जल्दी देख लेते हैं इसको भी। काउंट करिए पहले कितने बिट का है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बिट कंट्रोल वर्ड। ओके, 14 बिट कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या हुआ, जो फिगर आपने पढ़ा है 8.2 बता रहा है ये वही फिगर और उसका 14 बिट, मींस फर्स्ट 3 बिट्स क्या बताएंगी आपको, फर्स्ट 3 बिट्स क्या बताएंगी आपको, फर्स्ट सोर्स 001 मींस R1, देन 010, नेक्स्ट 3 बिट्स क्या बताएंगी, सेकेंड दैट इज R2, 010 किसका कोड होता है R2 का, नेक्स्ट 3 bits will tell you what, the destination, that is 011 means R3, R1 R2 R3, तीन चीजें हो गई हमारे पास। अब ये देखिए कोड 00101, 00101, ओपीआर टेबल में आप कोड चेक कर सकते हैं 00101। इस केस में आप देखेंगे 00101 is the code of subtract operation, micro operation, so this will be what, R1 minus R2 implies to R3, R1 minus R2 implies to R3. In same manner you will perform B, C, D, E. Okay, check करिए, all zeros
all zeros means no register in 1, no register in 2, no register in output, and operation is penta zeros means transfer. It means input is directly transferred to output. Input implies to output. Second क्या होगा? Input implies to output. थर्ड केस में देखिए 010 पहला सोर्स क्या है? R2. 010 R2. डेस्टिनेशन क्या है? 010 R2. R2 ऑपरेशन R2 implies to R2. ऑपरेशन कौन सा है वो ये देखिए 01100 01100. This is the OPR code of XOR operation. So R2 XOR R2 implies to R2. Okay. Fourth one. 000 shows no first register. Again 001 shows the second input is taken from R1. First input is taken from directly input. 000 means input. Second input is taken from R1 and output is given to output. Output will be available only on output, not in any register. And the operation is 00010. 00010. 00010 is addition. Okay, it means input plus R1 implies to output. Input plus R1 implies to output. Okay, the last one is 111 means first input is taken from R7. 100 is R4. So second is R4. Third is 011. 011 means R3. मतलब पहला रजिस्टर है R7, दूसरा रजिस्टर है R4 और डेस्टिनेशन रजिस्टर है R3. Okay, now check the operation. 1 tetra 0, 1 0 0 0 0. Now this is the code for shift right. This is the code for shift right. Now this is a tricky question. Listen carefully. In this आपके पास एक रजिस्टर दिया है, पहला रजिस्टर जहां से इनपुट ले रहे हो आप दैट इज R7, दूसरा रजिस्टर जहां से इनपुट ले रहे हो दैट इज R4, तीसरा रजिस्टर जहां पर आप आउटपुट दे रहे हो दैट इज R3 और ऑपरेशन है शिफ्ट का. जो शिफ्ट ऑपरेशन होता है वो हमेशा एक ही रजिस्टर पे लगता है, दो पर नहीं लगता. सो इन दिस केस ये जो सेकंड इनपुट रजिस्टर होगा दैट इज R4 दैट इज नेग्लिजिबल. जो R4 रजिस्टर है यानी कि सेकंड रजिस्टर जो आपने दिया है उस रजिस्टर को नेग्लेक्ट कर देगा प्रोसेसर, उस रजिस्टर से कुछ नहीं देगा एंड द ऑपरेशन विल बी लाइक शिफ्ट राइट R7. शिफ्ट राइट R7 implies to R3. ओके, वो क्या प्रोसेसर क्या करेगा, पहला रजिस्टर जो है वहां से वैल्यू फेच करेगा, दूसरे रजिस्टर से वैल्यू फेच करी प्रोसेसर ने, देन तीसरे रजिस्टर को सिलेक्ट कर लिया एंड अब चेक कर रहा है ऑपरेशन कौन सा है, शिफ्ट राइट. तो शिफ्ट राइट ऑपरेशन किस पे होगा, पहले पे ही होगा. तो सिर्फ पहली वैल्यू को शिफ्ट राइट करके वो डेस्टिनेशन में डाल देगा दैट इज R3. इस R4 के ऊपर कुछ नहीं होगा. ओके, दिस R4 कंटेंट ऑफ R4 विल बी नेग्लेक्टेड. क्लियर टू एवरीवन? ट्राई करिएगा इस तरह के क्वेश्चंस और करने का. आज के लेक्चर में इतना ही. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.